Now, serious question number one. Anil invests rupees 22,000 for 6 years in a scheme with 4% per annum, compounded half yearly. Separately, Sunil invests a certain amount in a same scheme for 5 years and then reinvests the entire amount he receives at the end of 5 years for a 1 year at 10% simple interest. If the amounts received by both at the end of 6 years are equal, then the initial investment in rupees made by Sunil. Okay. So after 6 years, Anil will get the amount. You can use this formula. A is equal to P1 plus R by 100 to the power n. So Anil will receive amount 22,000 and 1 plus half yearly the R by 2 हो जाएगा और टाइम 2n हो जाएगा. ये फार्मूला आपको पता होगा. 4 by 2 100 6 into 2. So 4 by 2 is 2, means the amount with Anil after 6 years will be 22,000 into 100 2 by 100 to the power 12. Now take the case of Sunil. सुनील का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो फाइंड करना है. तो विद सुनील सपोज हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज पी. तो सुनील फर्स्ट 5 ईयर तो सेम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन फॉर अ 1 ईयर एक दूसरी स्कीम है जो कि 10% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे है, उस पर इन्वेस्ट करता है. तो आफ्टर 5 ईयर सुनील का अमाउंट क्या हो जाएगा? आफ्टर 5 ईयर with this principal P, same scheme, so 1 plus 4 by 200, 2 into 5, right? So this is P into 100, 2 by 100 to the power 10. ये अमाउंट मिलेगा आफ्टर 5 ईयर सुनील को सेम स्कीम से. इसको 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 10% सिंपल इंटरेस्ट वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा? 110%. So this is the amount with Sunil after 6 years, and this was the amount with Anil after 6 years. दोनों इक्वल दे रखे हैं. तो नाउ 22,000 into 102 by 100. This is 12, and this P into 102 by 100 10 into this इससे ये 2 बचेगा. 22,000 102 into 102 by 100 स्क्वायर मीन्स ये 4 जीरो ये आ गया. और P आपको चाहिए तो P इज इक्वल टू दिस 10/11 और कर दीजिए आप. सो नाउ सी 1 2 3 4 1 2 3 4 correct, and 11 twos are this. So now P is 2 into 102 square, 2 into 102 into 102, और ये आपको आता होगा, आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी. 102 का स्क्वायर होता है 10404. वैसे कैलकुलेटर दिया है उससे भी फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ द फाइनल आंसर इज 2 1 2 0 8 0 8 20808. This is your answer. 2. If x and y satisfy the equation mod of x plus y 15 and x plus mod of y minus y is 20, then x minus y. Take this equation mod of x plus y is equal to 15. So for this equation, let mod of x is equal to plus x for x is greater than or equal to 0. So in this situation, this equation is going to be x plus y is equal to 15, means 2x plus y is equal to 15. This is equation number 1 for mod of x is equal to x. And take here this x plus mod of y minus y is equal to 20. Let mod of y is equal to plus y for y is greater than or equal to 0. So this is going to be x plus y minus y is equal to 20. This cancel. So x is equal to 20. Put this value of x here, and 2x plus y is equal to 15. So 2 into 20 plus y 15 is y is 15 minus 40 is going to minus 25. But remember, here y must be greater than or equal to 0, but it is a negative. So it means this is not acceptable. Mod of y is equal to plus y is not acceptable. So then do one thing, take let mod of y is equal to minus y. So in this scenario, y must be less than 0. So now x minus y is equal to 20. This x minus 2y is equal to 20. This is equation number 2, and it was 1.
सॉल्व करते हैं. So this 2x plus y is equal to 15 and this x minus 2y is equal to 20. ऐसा करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन. तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 to the 4x हो गया, ये 2y हो गया, दोनों को ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा. 2 to the 4x is 5x and here 15 to the 30 plus 20 is 50. So x is 10. x 10 एक पॉजिटिव नंबर है और x को पॉजिटिव ही होना चाहिए था. और x 10 आ गया, x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं. 10 minus 2 into y is equal to 20. So this minus 2y is equal to 10. So y is coming minus 5 and y must be less than 0. So okay, both x is equal to 10 and y is equal to minus 1 is satisfying the conditions. So I think x is equal to 10, y is equal to minus 5. Now it is very simple to find x minus y. So now x minus y, x 10 minus y is again minus 5. So this x minus y is equal to 15. This is your answer. Now see question number 3. Three circles of equal radii touch but not cross each other externally. Two other circles x and y are drawn such that both touch but not cross each of the three previous circles. If the radius of x is more than that of y, the ratio of the radii of x and y is to be find out. और इस तरह से है जैसे कि सर्कल है, ठीक, और ये एक दूसरा सर्कल है और ये एक तीसरा सर्कल है. सो दीज थ्री सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई टच ईच अदर एक्सटर्नली. तीनों एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं. टू अदर सर्कल x and y are drawn such that both touch each of the previous these three circles. अब ये देखो कैसे होगा, अगर एक सर्कल इस तरीके से हो जाए ऐसा, तो ये बाहर से तीनों को टच कर लेगा. अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर एक इस जगह यहां पर आ जाए तो नाउ यू कैन सी दिस इज सर्कल x and this is circle y. These two circle x and y touch the previous three circles. This circle x touch this, and the circle y touch this, and this. So now the condition is clear. And in this condition, you have to find the ratio of the radius of circle x and the circle y. Correct? So let's see this question. एक आपको डायग्राम, इसका परफेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर दे, फिर बात करते हैं. ठीक है, like this. So these are three. This, this, these are three circles touch each other externally, and this is circle x, and this one is y. Correct? x और y की रेडियस चाहिए. So if we take m, then radius of x, radius of circle x is m. Suppose this point is n. So radius of x हो गई हमारी mn. ये पॉइंट n. एंड रेडियस ऑफ y, ये जो छोटा सा सर्कल है, सपोज यहां पे हम लोग इसको ले लेते हैं, इसकी स्मॉल सर्कल की रेडियस स्मॉल हियर, दिस पॉइंट d एंड n. ये d पॉइंट है, अगर इसको हम लोग d ले लें, दिस पॉइंट इज d एंड दिस इज n. तो ये हो गई आपकी dn. राइट, dn को मैंने x ले लिया. ठीक है, अब बात यहाँ तो सब कुछ क्लियर हो गया. आगे कैसे इनको फाइंड करेंगे, इस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए. एम एन डी एन कैसे निकलेगा. सर्कल एक्स की रेडियस एम टू एन हो गई एंड सर्कल वाई की रेडियस डी टू एन हो गई. सो एम एन, व्हाट इज एम एन? लेट अस टेक दिस इज इक्वल टू आर, एम सी आर. सो सी, ये भी आर होगा और फ्रॉम सी टू दिस ये भी आर होगा. तीनों सेम सर्कल थे तो ये भी रेडियस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. सो एम एन इज स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर है यहां से लेके यहां तक. तो 2r प्लस dn, let dn is small x, तो ये x हो गया, सॉरी x. 2r प्लस x और dn आपने x ले रखी. तो हम लोग को 2r प्लस एक्स की 2r प्लस एक्स अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी, यही हम लोग का आंसर होगा. यही रेशियो हो गया mn अपॉन डी.
करेक्ट. सो हाउ विल वी वर्क फॉर गेटिंग एक्स एंड आर? ठीक है. तो लेट्स सी दिस. This triangle CA is 2R, this is 2R, so it is an equilateral triangle, right? So if I take this line to this place, right? CP ले लेते हैं, CP, C2P. C2P क्या हो जाएगा? अभी इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये 60 होगा. 60. आप ट्रायंगल सी ए बी में, इन ट्रायंगल सी ए बी, this angle is 60 degree, you know, it is equilateral triangle, so it is 60, it is 60, it is 60. So here in triangle A, CAP, so not B, CAP, sine 60 is equal to CP upon hypotenuse 2R. Sine 60 is root 3 by 2. So this root 3 by 2 CP upon 2R. So this CP is R root 3. C2P is R root 3. Correct. And now you take triangle ANP. Triangle ANP. In triangle ANP, AN, इसको छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं. ओके, इस तरीके से ए एन एंड दिस इज पी एन बी. सो ए एन क्या हो गया? यहां से यहां तक ये जो इस सर्कल की रेडियस होगी ये आर है, तो ए टू दिस आर, और यहां से यहां तक स्मॉलर सर्कल की रेडियस हम लोगों ने डी एन एक्स ली थी, तो दिस इज गोइंग टू आर प्लस एक्स. ए पी इज आर. एन पी क्या होगा? एन पी. सो फ्रॉम सी टू पी इट इज आर रूट थ्री. सो दिस इज आर रूट थ्री माइनस आर रूट थ्री माइनस सी डी. सी डी आपका क्या है? फ्रॉम हियर टू हियर इट इज आर एंड इसकी रेडियस एक्स है, तो माइनस आर प्लस. So now in triangle APN, it is r plus x, it is r, it is this. So Pythagoras theorem say up r plus x square is equal to base r square plus height r root 3 minus r plus x whole square. So it is coming r plus एक्स स्क्वायर और ये आर स्क्वायर है, और इन साइड आर रूट थ्री का स्क्वायर, ये हो गया 3R स्क्वायर प्लस ये आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2R रूट थ्री इंटू एक्स प्लस आर. सो तो ये इससे कैंसिल हो गया. आर प्लस 3R स्क्वायर इज 4R स्क्वायर हो गया, है ना. 4R स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4R माइनस 2R, दिस इज माई प्लस नहीं माइनस हो जाएगा. 4R स्क्वायर माइनस 2√3RX 2 R रूट थ्री एंड माइनस 2R स्क्वायर इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 0. सो आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें, आर स्क्वायर माइनस दिस, so I'm taking it here. 4R स्क्वायर is equal to 2 root 3 into R x plus 2 R square root 3. Okay, it is 4R square equal to 2 root 3 RX plus 2R square. अब 2 कॉमन होगा तो ये आपका 2 हो गया, और यहां से R अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, R ये कैंसिल हो गया और ये खत्म हो गया, तो अब आपको बचा 2R इज इक्वल टू √3x प्लस R रूट थ्री. So this is R minus R root 3 is equal to √3x. इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, R को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 minus root 3 is equal to √3x. So this R plus R upon x is equal to √3 upon 2 minus root 3. अच्छा, dn यहाँ पे x था, इसको x कर दीजिए. So R upon x root 3 2 minus root 3. You need 2R plus x upon x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड प्लस में अगर कर दें तो 2R upon x plus 1, and here this is
2 √3 2 -√3 + 1, ये सब बहुत सारे स्टेप्स आपको डायरेक्ट कर लेने चाहिए। ये आ गया 2r + x/x, और ये हो जाएगा 2 √3 + 2 -√3, and it is 2 -√3, 2 √3 -√3 यानी 2 + √3 आ गया। This is coming 2 + √3/2 -√3। रेशनलाइज करेंगे, 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 -√3 आ जाएगा, विच इज एक्चुअली 2 स्क्वायर 4 √3 + 3 plus 2 2s are 4 √3, and denominator is a square minus b square, so 4 minus 3 1. So this is 4 plus 3 7. 7 4 √3 is 7 4 √3/1. So your answer is 7 plus 4 √3/1. Okay, 4 3 7 1 7 plus 4 √3, ये रेशियो आ गया आपका 2r + x/x। 2r + x/x यही आपको फाइंड करना था, तो आंसर is 7 plus 4 √3/1. Answer is this is. Now see question number 4. When 3 to the power 333 is divided by 11, the remainder is. So look, 3 to the power 333 divided by 11. If we see the nature of 11, when we divide 3 by 11, then it is 3. 3 to the power 2, 9, so it will remain 9. And 3 to the power 3, 27, 11 to the 22, remainder is 5. And 3 to the power 4, 81 divided by 11, remainder is 11, 7 is 74. And 3 to the power 5 is 243 divided by 11. 11 to the 22, 11 to the 22. Okay, now the remainder is 1. 243 when divided by 11. 2 ja 22. 2 ja 22. This is 1. It means 3 to the power 5 divided by 11 gives remainder 1. Okay. So it means 3 to the power 333 को 3 to the power 5 के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो 5 into 66 plus 3, right? 11. And now 3 to the power 5 is 66 into 3 to the power 3 divided by 11. So 3 to the power 5 divided by 11 is, 1. So 1 to the power 66 is 1. And then 3 to the power 3 is 27. 27 divided by 11, 11 to the 22. Remainder is 5. So answer is 5. Question number 5. The roots alpha beta of the equation 3x square plus lambda x minus 1 is equal to 0. Satisfy 1 upon alpha square plus 1 upon beta square is equal to 15. The value of alpha cube plus beta cube whole square is to be found out. Okay. So for this, if root alpha, beta are the roots of this equation, then alpha plus beta is equal to minus lambda by 3, and alpha into beta is minus 1 by 3. Okay, this is, and then 1 upon alpha square, 1 upon beta square is equal to 15. This you can simplify as alpha square plus beta square upon alpha beta square is equal to 15. So alpha beta minus 1 upon 3, alpha beta square minus 1 upon 3 square into 15 means it is 15 by 9, 5 ja, 3 ja. So this alpha square plus beta square is 5 by 3. This is okay. And now you have to find alpha cube plus beta cube square. This is alpha to the power 6 plus beta to the power 6 to alpha beta cube. So only what is required here, alpha to the power 6 plus beta to the power 6, because to alpha beta whole cube, alpha beta is already given. So for finding alpha to the power 6 plus beta to the power 6, do one thing. Alpha square plus beta square whole cube it. Alpha square plus beta square whole cube is alpha to the power 6, beta to the power 6, 3 alpha beta square and alpha square plus beta square.
Alpha square beta square, it is 5 by 3 whole cube minus 1 by 3 square ये given था. And this alpha square plus beta square is 5 by 3. So now this 3 cancel. Minus 1 by 3 square is 1 by 9, 5 by 9. So here it is 125 by 27 minus 5 by 9. This is alpha to the power 6, b to the power 6. So this is going to 3 9 here it is 3. So this 125 minus 15, 110 upon 27. It is alpha to the power 6, beta to the power 6. Put it here and here. So alpha to the power 6 plus simply put value here for finding this. Alpha it is comment 110 by 27 plus 2 alpha beta का whole cube, this minus 1 by 3 square. It is 110 upon 27 minus square है तो plus क्यों है? It is cube, so it is minus 2 into minus 2 upon 27. So 10 minus 108 upon 27. 9 3 9 12 3 4. So this alpha square, alpha cube, beta cube square is 4. This is your answer. Question number 6 is, a fruit seller has a stock of mangoes, banana, and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of his stock. That day, he sells half of the mangoes, 96 bananas, and 40% of the apples. At the end of the day, he end up selling 50% of the fruits. The smallest possible total number of fruits in the stock at the beginning of the day. Okay. Mango, banana, apple. So he had a stock of mangoes, bananas, apple with at least one fruit of each type. Okay. And at the beginning of the day, the number of the mangoes, 40% of the stock. Okay. Total stock जो है इसको एज्यूम कर लेते हैं 10x. ओके. तो 40% दिस इज गोइंग टू 4x. ओके. एंड सपोज एप्पल है y. ठीक है. एप्पल इसको y ले लेते हैं और इसको z ले लेते हैं. कुछ भी ले लिया जाए इस तरीके से, नॉट अ इशू. नाउ ही सेल हाफ ऑफ द मैंगोज. इसका मतलब सोल्ड यूनिट 2x of mangoes, 96 banana. Okay, 96 unit of banana he sold, and 40% of the apple he sold. Means Z का 40% का मतलब हो गया 2 by 5. So unsold 2x y minus 96, and Z का 40% था, तो Z का 60% unsold हो गया. This is a question. It is given that at the end of the day he ends up selling 50% of his fruits. 50% की सेलिंग है टोटल फ्रूट्स की. तो सोल्ड फ्रूट्स अगर हम लोग देखें तो इतने थे, और 50% ऑफ द फ्रूट्स बिक गए हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 10x का 50% हो गया 5x. चलिए इसको देखते हैं. 2x प्लस 96 प्लस जेड इंटू 2 by 5
and this is equal to total 5x. 5x minus 2x is 3x. अलजेब्रा में पता है इसको इनडिटरमिनेट इक्वेशंस कहते हैं, जहां पर दो अननोन वेरिएबल्स हैं और एक ही रिलेशन है आपके पास। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लुक यार, 96 प्लस जेड इंटू 2/5 इज इक्वल टू 3x। राइट हैंड साइड 3x है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है नंबर 96 + 5 जेड इंटू 2/5, ये पूरा का पूरा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, 96, 3 3 9, 3 2 3 का मल्टीपल है, टू जेड ऊपर लिखा हुआ है, तो ये भी अगर 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो जेड 3 6 9 इस तरीके से कुछ होना चाहिए, है ना? जेड की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 6 9 15 डैश डैश डैश। ओके, बट सी आप 3 6 9 जो कुछ रख करके 3 का मल्टीपल वो तो बना रहे हो, बस 2/5 है, यानी 5 से भी उस नंबर को डिविजिबल होना चाहिए। तो जेड क्या होगा? इसके कारण जेड को 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और जेड को 5 से, मतलब ये जो भी नंबर आपका जेड है इसका आपने 2/5 किया था। तो यहाँ ये बात नोटिस करने लायक है कि जब एप्पल का 2/5 बिक गया है, तो एप्पल का 2/5 कोई ना कोई होल नंबर ही होगा ना भाई, पॉइंट डेसिमल पे तो आंसर आएगा नहीं। तो इसका मतलब जेड का 2/5 तभी किया जा सकता है जब जेड कोई 5 का मल्टीपल हो, यानी जेड को 5 से भी डिविजल होना चाहिए। तो जेड 5 से भी डिविजल हो और जेड कोई ना कोई 3 का भी मल्टीपल, तो 3 का भी मल्टीपल हो, 15 का भी मल्टीपल हो, तो छोटा से छोटा ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? 15। तो अगर आप यहाँ पर 15 लिख देते हो तो 96 मीन्स फॉर जेड इज इक्वल टू 15। आई थिंक बात आपको समझ आएगी ना क्यों 15 में कह रहा हूँ। ठीक, तो जेड की वैल्यू अगर आपने 15 रखा और ये 2/5 किया, तो 5 3 इज इक्वल टू 3x। जेड की मिनिमम वैल्यू 15 रखी जा सकती है इस सिनेरियो में। तो अब x क्या हो जाएगा? x आपका हो जाएगा 96/3, एंड हियर दिस 3 2, यानी कि 3 × 2/3, इससे ये कैंसिल हो गया। 3 3 जा 3, 32 + 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 34। आपने x 34 निकाल लिया, टोटल स्टॉक कितने का था? 10x का था, इसलिए टोटल स्टॉक आपका जो है पूछा जा रहा है। टोटल स्टॉक 34 × 10 मीन्स 340। बट नहीं, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जब ये एक इनडिटरमिनेट इक्वेशंस बन जाती है तो आपको ये सोचना चाहिए, राइट हैंड साइड 3 का मल्टीपल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पूरी की पूरी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 96 तो 3 का मल्टीपल है, जेड को 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन जेड इंटू 2/5 है, यानी जो जेड एप्पल थे उसके 2/5 बिके थे, तो जेड को कोई काट के तो बेचा नहीं गया कि एप्पल्स को काट काट के बेच दिया गया, है ना? मतलब होल फ्रूट्स बिकेगा ना। होल फ्रूट्स बिकने का मतलब क्या हो गया कि जेड को 5 से डिवाइड करें तो वो डिविजिबल हो, यानी जेड 5 का मल्टीपल है। तो जेड को 5 का भी मल्टीपल होना है और इसके कारण 5 का भी मल्टीपल होना है और 3 का भी मल्टीपल होना है, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो? 3 और 5 का एलसीएम 15। तो मैंने जेड इज इक्वल टू 15 रखा। और आपको यहां भी चाहिए भी था द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो जेड अगर 15 रखते हैं आप, तो ये क्या आएगा? 96 + 3 × 2 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 34। टोटल स्टॉक आई टू 10x, तो टोटल स्टॉक 10 × 34 इज 340। दिस इज योर आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार कैट 2023 की स्लॉट 3 का ये क्वेश्चन था, और लास्ट ईयर मेरी स्लॉट में क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 59। बट एनीवे, नंबर 7, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1/5 into 1/5 minus 1/7 plus 1/5 whole square inside the bracket 1/5 whole square minus 1/7 whole square bracket close, then 1/5 whole cube, a new bracket 1/5 whole cube minus 1/7 whole cube, दिस इज इनफाइनाइट तक की सीरीज जा रही है, इसका सम निकालना है। तो देखिए, मैं पहले इसको इसको लेता ब्रैकेट को ओपन कर दिया, क्या हो गया? 1/5 इंटू 1/5, फिर इसके साथ ये ले लेता हूं, प्लस 1/5 स्क्वायर
इनटू इसका जब ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1/5 स्क्वायर। अब ये लेता हूं और इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/5 होल क्यूब, 1/5 होल क्यूब। इस तरह से इनफाइनाइट तक ये सीरीज जा रही है। इतना ये हो गया, ये माइनस, फिर मैं इसको ले लेता हूं 1/5 इंटू 1/7। राइट, फिर ये माइनस था तो माइनस कॉमन लिया, तो ये 1/5 स्क्वायर यानी कि प्लस 1/5 स्क्वायर इंटू 1/7 स्क्वायर। राइट, नाउ आई विल टेक दिस 1/5 होल क्यूब इंटू माइनस दिस 1/, तो माइनस कॉमन ले रखा है, ये हो गया आपका 1/5 होल क्यूब इंटू 1/7 होल क्यूब। इस तरीके से ये एक दूसरे सीरीज जारी है। अब आपको समझ में आ गया, एक सीरीज ये थी, एक सीरीज ये थी, इसको कंबाइन करके ऐसे लिखा गया था। तो इस वाली सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हो गया 1/25, और इसका कॉमन रेशियो हो गया 1/, अब देख रहे हैं इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/5 इंटू 1/5 ही तो होगा, मीन्स यानी कि 1/25 कॉमन रेशियो हो गया। इस सीरीज का आप सम निकाल सकते हैं फार्मूले से, और इस सीरीज का ए क्या हो गया, 1/, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 1/5 इंटू 7, और इसका कॉमन रेशियो हो गया 1/5 इंटू 1/7। So now for this series, a upon 1 minus r, in the first term 1/25 upon 1 minus r means 1/25, ये वाला माइनस, और इसका 1/35, here 1 minus 1/35, तो this is 1/25, this 25 minus 1 24, 25, तो this 34, इसको सिंप्लीफाई करोगे 34 minus 24 upon 24 into 34 means 10/24, 10 का हो जाएगा 5/12, and this is 5/12 हो जाए 4/8। This is your answer. Number 8. Veena incurs 19% loss when she sells a product at rupees 4,860 to Shyam, who in turn sell this product to Hari. If Veena would have sold this product to Shyam at the purchase price of Hari, she would have obtained 17% profit. Okay, then the profit in rupees made by Shyam is. Okay, let's Veena and sell to Shyam, and Shyam to Hari. So Veena incurs 19% loss, means Veena to Shyam 19% loss. Okay, and it is sold at 4,860. If Veena would have sold this product to Shyam at the purchase price of Hari, she would have 17% profit. Then the profit in the rupees made by the Shyam is. Okay, it is given, if Veena would have sold this product to Shyam at the purchase price of Hari, she would have obtained 17% profit.
मीन्स श्याम ने जिस प्राइस पे हरि को बेचा, उसी प्राइस पे अगर बीना बेचती हरि को तो उसे 17% का प्रॉफिट होता है। ओके, करेक्ट। मीन्स अगर बीना जिस रेट पे श्याम ने हरि को ये प्रोडक्ट सेल किए हैं, ये प्रोडक्ट बीना के प्राइस का 117 प्राइस 117% है। मीन्स बीना की कॉस्ट जो होगी, नहीं बीना का प्रोडक्ट कितना का ये आप निकाल सकते हो। सपोज ये एक्स है और ये, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं वाई। एक्स अगर बीना की कॉस्ट है और बीना ने डायरेक्ट हरि को वाई पे बेचा होता तो बीना को 17% का प्रॉफिट होता। मीन्स इट इज वेरी क्लियर दैट द हरि ने जिस प्राइस पे से खरीदा है, इट इज 117% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बीना, राइट। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4860, 19% लॉस पे बीना ने इसको बेचा है। इसका मतलब एक्स इज टू 100 - 19, 81%, विच इज इक्वल टू 4860। तो सिक्स बन जा, 68, इट इज सिक्स, सिक्स बन जा, सिक्स इज 48। तो एक्स इज व्हाट? इट इज कमिंग 6000। मीन्स द कॉस्ट फॉर द बीना इज 6000। ये इसने 4860 पे बेच दिया, इसे 19% का लॉस हो गया। अब श्याम ने इसको वाई पे बेचा। अगर डायरेक्ट बीना सारी को इस वाई रुपी में बेचती तो उसको 17% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब 6000 का 117% इज इक्वल टू वाई। तो दिस is 60 into 117. 60 into 117. Do this. It is 6 7 ja 42, 4 carry, 6 1 ja 6 plus 4 0 10 हो गया, and 6 1 ja 6 1 7 7020। मीन श्याम ने हरि को 7020 में बेचा। क्वेश्चन ये है, द प्रॉफिट इन द रुपीज मेड बाय श्याम। तो श्याम ने खरीदा तो था 4860 का, बेचा कितने का? 7020। तो द प्रॉफिट ऑफ श्याम इज 7020 माइनस 4860, 0 12 6, subtract 981640, it is 2160। So this is your answer. Profit of Sam is 2160। Number 9. When Rajesh's age was same as the present age of Garima, the ratio of their age was 3:2. When Garima's age become the same as the present age of Rajesh, the ratio of the ages of Rajesh and Garima will become. Okay. यहाँ पर ये राजेश है और ये गरिमा। कुछ समय पहले की क्या बात है? द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 3:2। मीन्स राजेश 3x का था और गरिमा 2x की थी। इज इट ओके ना? When the Rajesh age was the same as the present age of Garima, the ratio of their age was 3:2. So suppose 3 years back, the ratio between Rajesh and the Garima age was 3x 2x. It is okay. ये एज जो है राजेश की फ्यू इयर्स बैक, प्रेजेंट एज गरिमा की है। ठीक है। रेशियो 2x 3x 2x का था। आज ये अगर 2x था, आज गरिमा 3x की है। देखो ध्यान से सुन, पढ़िए इसको। व्हेन राजेश एज वाज द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ ए गरिमा,
the ratio of their age was 3:2. So few year back, the ratio of their ages was 3:2. So I took here Rajesh was 3x and Garima 2x. ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे राजेश इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। तो ये जो राजेश जिस वक्त 3x का था, आज गरिमा 3x की है, और उस वक्त गरिमा 2x की थी। तो 2x 3x का डिफरेंस क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर x ईयर ये 2x से 3x की हो गई, तो आफ्टर x ईयर ये 3x से 4x का हो जाएगा। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि when the garma age become the same as the present age of Rajesh, present age कितनी है राजेश की, 4x, आफ्टर x years गरिमा 4x की हो जाएगी। जब आफ्टर एक्स ईयर गरिमा 4x की हो जाएगी, तो ये 4x वाले राजेश जी 5x के हो जाएंगे। तो उस वक्त रेशियो चाहिए था, तो 5x और 4x का रेशियो कितना हो गया, 5:4। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कुछ पड़े हुए थे जिनको अगर आप मिल गए आपको, इनको मैं ब्लेसिंग ही कहूंगा, अगर आपने प्रिपरेशन करी तो टफ। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 10। Amal and Vimal together can complete a task in 150 days, while Vimal and Sunil together can complete the task in 100 days. Okay, okay. Amal start working on the task and work for 70 days. Then Vimal takes over and work for 135 days. Finally, Sunil takes over and complete the remaining task in 45 days. If Amal had started the task alone and worked on all days, Vimal had worked on every second day, and Sunil had worked on every third day, then number of the day required to complete the task would have been. Okay, look this question. Amal and Vimal together can finish the whole work in 150 days. Vimal and Sunil together can complete in 100 days. Okay. Amal start on the task and work for 75 days. So 75 days work of Amal. Then Vimal takes over and work for 45 days. So 135 days of Vimal. And finally, Sunil takes over and complete the remaining task in 45 days. So 45 days of Sunil, and this is a full work. Okay, this is one. I've given a if Amal had started task alone and work on all days, and Vimal had worked on every second day, and Sunil had worked on every third day, then the number of days required to complete the task would have been. Okay, इस तरीके से है जैसे अमल ने पहला दिन काम किया, फिर अमल तो रोज आ रहा है ना, रोज अमल आ रहा है, जितने भी दिन है अमल इज वर्किंग एवरी टाइम। सो अच्छा, विमल हैड वर्क ऑन एवरी सेकेंड डे। तो विमल को हम लोग लिखते हैं, इस सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड, 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 यानी यहाँ पे विमल आया, फिर विमल आएगा, फिर विमल आएगा, फिर विमल आएगा, यहाँ पर फिर भी इस तरीके से ही जाएगा। Okay. अब सुनील क्या करता है, सुनील हैड वर्क ऑन एवरी थर्ड डे। तो थर्ड डे क्या हुआ, एक ये हुआ थर्ड, 1 2 3 4 5, यहां भी आएगा, फिर 6 के बाद 7 8 9 इस जगह आएगा, इस तरीके से। तो यहां पर ये सुनील आया, फिर इस जगह सुनील है, और इस जगह सुनील है। ठीक है,
तो यहाँ पर ए अकेले था, यहाँ पर ए वी था, यहाँ ए एस था, यहाँ ए वी था, यहाँ ए वी एस था। ठीक है, अब देखो, ए से लेकर यहां तक देखें अगर, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहां पर समझ गया। फिर क्या हो जाएगा, ए, ए वी, ए एस, ए वी डैश, ए वी एस। फिर उसी तरीके से ए, ए वी, ए एस, ए वी। अब इसके बाद कौन किसका नंबर है यहाँ पे, ए अकेले होगा। ए अकेले होगा, और एक के बाद फिर आ जाएगा आपका 1 2। अब यहाँ पर आ गया ए वी, और इस जगह फिर आ जाएगा ए वी एस। आई थिंक यू आर गेटिंग मी। इसको मैं ठीक से अगर और आगे बढ़ा दूं तो आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हो। इसको मैं और आगे इंक्रीज कर देता हूँ। ये ए तो हर जगह इधर है ना, ए, ए, ए। ठीक है, ए, 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 वी का सिस्टम है एवरी सेकेंड डे। तो देखो यहाँ पर वी आया था, एक छोड़ के फिर वी आ गया, फिर एक छोड़ के वी आ गया, फिर यहाँ पर इस जगह फिर वी आ जाएगा, फिर यहाँ पर वी आ जाएगा, ये इस तरीके से चल रहा है। और एस क्या था, एस इज कमिंग ऑन एवरी थर्ड डे। तो थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप ये चीज देखो, इस सिक्स की साइक्लिसिटी में ये चीज एक तरीके से मूव कर रही है। ए, ए वी, यहाँ ए, ए वी, ए एस, ए वी, ओनली ए, ए वी एस। इसी साइक्लिसिटी को रिपीट करेगा। ए, ए वी, ए एस, ए वी, एलोन ए, एंड देन ए वी एस। राइट, तो ये साइक्लिसिटी यानी ये एक पूरा इंटरवल है 6 डेज का जो बार बार रिपीट करेगा। अभी तक ये सब बातें समझ में आएगी। अब ऐसे कितने इंटरवल होंगे कंप्लीट, और कैसे वर्क फिनिश हो जाएगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो नाउ द वर्क इज यू हैव टू फाइंड ए बी दिस। अब ये कैसे निकलेगा, डू वन थिंग, अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह करी है तो आपको पता होगा कि ऐसे सिनेरियो में लेट फुल वर्क इज 300 वर्क। आपको पता है, ये मैंने इसलिए एज्यूम कर लिया है क्योंकि इससे इजीली डिविजन हो जाएगा। ए एंड वी, अमल एंड विमल 150 डेज में फिनिश करते हैं। इसका मतलब इनका जो डेली आउट होगा, जो डेली इनपुट होगा वो कितना होगा, 2 W का होगा। अमल एंड विमल 2 W वर्क फिनिश करते होंगे तो 150 डेज में ये 300 वर्क फिनिश रहता होगा। और विमल और सुनील की टीम 3 वर्क करती होगी, है ना। तो 3 × 100, ये 300 वर्क फिनिश रहता होगा। अब देखिए, 75 डेज ऑफ अमल का अकेला इनपुट है, 135 डेज विमल का है, 45 डेज है, ऐसे क्या होगा। एक काम करते हैं, ये 45 डेज सबसे कम है, तो पहले ऐसा करते हैं कि 75 एंड 45। ओके, अमल और विमल गिवन है, तो इन दोनों में से अगर हम लोग 75 डेज को कॉमन ले लें, तो 75 डेज ऑफ अमल प्लस विमल। ठीक है, अब 135 से 75 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचा आपका क्या। अभी आपके पास 25 एंड 35 60, 25 एंड 60 डेज ऑफ विमल बचा हुआ है। मीन्स इसके 135 से 75 डेज मैंने कॉमन ले लिया एक के साथ। अब ये 45 डेज ऑफ सुनील था, तो अगर इसके 45 डेज और विमल के बचे हुए 60 में से 45 डेज को कॉमन ले ले, तो आप क्या लिख सकते हो, 45 डेज ऑफ वी प्लस एस। इज इट ओके, अगर इस 60 में से 45 डेज विमल के और 45 डेज सुनील के हम लोग इकट्ठा ले लें, तो इसका मतलब 60 - 45, 15 डेज बचेंगे। तो हो क्या गया,
इसकी जगह आप 60 की जगह इसको कर लीजिए 15 डेज विमल, और इधर 45 डेज ऑफ विमल प्लस सुनील। फुल वर्क कितना आपने 300 एज्यूम किया था, काम फिनिश हो जाएगा। अब 75 डेज ऑफ अमल एंड विमल। अमल एंड विमल का डेली का कंट्रीब्यूशन 2W का है, तो इस ये कितना हो गया इंटू 2W प्लस 15 डेज ऑफ विमल बचा हुआ है। अब हियर 45 डेज ऑफ वी प्लस एस, विमल और सुनील। विमल एंड सुनील डेली 3 वर्क करते, सो इन 45 डेज दे विल फिनिश 3W इज इक्वल टू 300 वर्क। अब इस तरह से हम लोग विमल का फाइंड कर सकते हैं। तो W 75 टू जा 150, एंड 150 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 150 बचेगा, और दिस इज 135। तो मीन्स 300, W 75 टू जा 150, माइनस 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 1 13। So this is a 15 days of women. So 300 minus 150, 150, 150. This is 15 work. I think it is okay. Right. 15 डेज में विमल कितना फिनिश करता है, 15 डेज, तो विमल का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1 वर्क। 15 डेज ऑफ विमल वर्क इज इक्वल टू 15 डेज। सो 1 डे वर्क ऑफ विमल is 1 work. Is it clear? Now very simple. विमल एंड सुनील का 1 डे का वर्क कितना था, 3W था। तो अगर 1 डे वर्क ऑफ विमल इज 1 है, तो इट मीन्स 1 डे वर्क ऑफ सुनील कितना होगा, 2। 1 डे वर्क ऑफ अमल और विमल 2 था। अगर इनका 2 वर्क है, और जिसमें से विमल का 1 डे का वर्क 1 वर्क 1W होता है, अमल का भी 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1 डे वर्क ऑफ अमल is also 1 work, right? So it means in a 1 day, Vimal will work 1W, finish 1W work. Sunil alone in a 1 day finish 2W work. Amal will finish in a 1 day 1W work, right? And now see this. इस 6 डेज के इंटरवल में क्या होगा, 6 डेज के इंटरवल में अमल के 6 डेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 इन 1 interval of 6 days। ये 6 डेज का एक इंटरवल का मैं आउटपुट निकालता हूं। तो इसमें ए अमल के 6 डेज है, तो 6 1 जा, इसका हो गया। विमल कितने दिन आया, 1 2 3, 3 इंटू विमल का आउटपुट क्या था, विमल का इनपुट था 1, तो इसका भी हो गया 1W, प्लस सुनील कितनी बार आया, 1 2, और सुनील का 2 दिन का इनपुट है। सुनील का इनपुट क्या रहता है, 2, तो 2 2 जा, तो 6 3 6 3 9 9 4 31। आर यू गेटिंग मी? I think it is very clear. In a one interval of a 6 days, 1 2 3 4 5 6, और अमल का 1 डे का था 1 वर्क, तो 6 डेज में इसका इसने 6W वर्क कंट्रीब्यूट कर दिया। और विमल आया 1 2 3 टाइम। विमल क्या करता है, 1 वर्क करता है, ये भी 1 डे में, तो इसका 3 इंटू 1 हो गया, तो 6 3 9 हो गया। सुनील कितनी बार आया, सिर्फ 2 टाइम, एंड सुनील इन अ 1 डे फिनिश 2W वर्क, सो 2 2 4, सो 9 + 4 13। सो इन अ वन इंटरवल ऑफ 6 डे कितना वर्क फिनिश हुआ, 13W। आपका टोटल वर्क आपने कितना एज्यूम किया था, 300। वट मी, आई थिंक इट इज इजी। अब आप एज्यूम कर सकते हो कि इतने कितने इंटरवल होंगे।
6 डेज के इंटरवल में आपने 13 वर्क फिनिश करना है। वर्क है कितना आपका, 300 है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से करें कि कितने कंप्लीट इंटरवल होंगे। हम्म कंप्लीट इंटरवल की अगर बात करी जाए तो मान लो 10 ले लेते हैं, तो 13 10 जा 130 होगा। 13 × 20, 13 × 20 करेंगे तो हमारा वर्क कितना हो गया, 260 वर्क हो गया। आर यू गेटिंग मी? सो 20 अगर कंप्लीट इंटरवल ले जाए तो 260 वर्क हो गया। अब आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 3 × 30 करेंगे तो 390 हो जाएगा वर्क तो हमारा। तो 20 इंटरवल्स के बाद ये वर्क फिनिश होगा। तो थोड़ा सा सीरियसली 300 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड कर ले तो 13 2 × 20 से 4 3 जा मीन्स 23 कंप्लीट इंटरवल होंगे। और वर्क अभी भी कुछ ना कुछ बच गया होगा, बिकॉज 13 3 जा 9, 3 कैरी ओवर, 13 2 26, 3 26 10 299 कितना हो गया? आर यू गेटिंग मी और नॉट? 23 इंटरवल, एक इंटरवल में कितना वर्क होता है, 13 वर्क। टोटल वर्क कितना मैंने किया, 300 लिया। सो 300 वर्क को वन इंटरवल ऑफ 6 डेज कितना है, 13 वर्क से डिवाइड किया मैंने, कितना आया, 23। ये बच रहा है इसको। तो इसका मतलब 23 इंटरवल तो ये हो गया। 23 इंटरवल में वर्क कितना फिनिश हुआ, 299। हम्म और अभी आपके पास वन वर्क बचा हुआ है। अब जब भी आपका इंटरवल ओपन होता है तो चांस किसकी आती है, ए की। ए अकेले होता है। ए अपने टर्न पे एक वर्क फिनिश कर सकता है, इसका मतलब 1 डे मोर। सो 23 इंटरवल्स ऑफ 6 डेज +1 डे मोर, राइट। एक इंटरवल में कितने दिन होते हैं, 6 डेज, तो 23 × 6 डेज प्लस ये कितना हो गया, 1 डे। तो आंसर हो गया 6 3 18, 6 2 12 1 13 +1। तो आंसर आ गया आपका 109 डेज। इट इज ओके, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। A bus start at 9 a.m. and follows a fixed route every day. One day it traveled at a constant speed of 60 km per hour and reached its destination 3.5 hours later than its scheduled arrival time. Next day it traveled two-thirds of its route in one-third of its total scheduled travel time, and the remaining part of the route at 40 km per hour to reach just on time. The scheduled arrival time of the bus. देख भाई, आपको फाइंड करना है शेड्यूल्ड अराइवल टाइम ऑफ द बस। बस 9 AM पे स्टार्ट होती है और डेस्टिनेशन पे जहां इसे पहुंचना था, अगर उसको 60 km/h की स्पीड से गई है तो लेट पहुंची है। लेट कितनी पहुंची है, 3.5 आवर्स। इसका मतलब जो भी शेड्यूल्ड अराइवल टाइम है उससे इतना प्लस हो गई, है ना। ओके, डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज AB कर देते हैं। तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी 60 km/h है। डिस्टेंस AB ले लेते हैं, ठीक है। AB को X किलोमीटर ले लिया मैंने, ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक
एक्स किलोमीटर है अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, जो शेड्यूल टाइम है उससे 3.5 आवर ज्यादा लगेगा। इट इज ओके। तो इस ए बी को हटा के हम कंफ्यूज ना हो, एक्स क्या है, एक्स किलोमीटर के डिस्टेंस में एज्यूम करी। तो ये हमारा एक इक्वेशन रेडी हो गई। देखते हैं, 60 into t plus 3.5 into x, what is it? This is x is the distance between a b। अब नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट केस में इट ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स रूट। 2/3 ऑफ इट्स रूट का मतलब क्या हो गया, एक्स का 2/3, 2/3 ऑफ इट्स रूट इन 1/3 ऑफ इट्स शेड्यूल टाइम। यानी इस 2/3 रूट को ये ट्रेवल कर ले रहे हैं कितने में, 1/3 ऑफ शेड्यूल जो टाइम है, 1/3 ऑफ, हमने शेड्यूल टाइम क्या लिया, टी, यही निकालना है ना इसमें। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट 40 किलोमीटर। अब भाई एक्स में से एक्स 2/3 आप कवर कर चुके, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, रिमेनिंग पार्ट हुआ आपका एक्स माइनस एक्स 2/3, मीन्स एक्स का 1/3। ये डिस्टेंस आप किससे ट्रेवल कर रहे हो, इस डिस्टेंस को आप ट्रेवल कर रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उसमें टाइम कितना ले रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आप 1/3 ऑफ द शेड्यूल टाइम ले चुके हो, तो 1/3 शेड्यूल टाइम चला गया तो क्या बचा, 2/3 ऑफ द शेड्यूल टाइम बचा, क्योंकि आप अराइव, यू आर रीचिंग ऑन टाइम। सो 1/3 टाइम ऑलरेडी आप इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुके थे, तो अगर टाइम पहुंचते हो तो शेड्यूल टाइम का 2/3 ही बचा। ओके, सो दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2/3 ऑफ शेड्यूल टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, और ये स्पीड कितनी दे रखी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके? तो यहां से हम लोग देखेंगे ये क्या बन गया, ये हो गया आपका 1/3x, दिस इज 2/3t is equal to 40। 3 cancel, and this x is going to 2t into 40 है ना, मीन्स 80t। अब ये x की वैल्यू हम लोग यहां पे रख लें, तो 60 into t प्लस 60 into 3.5, और इस x की जगह 80t। तो 60t सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 20 आ गया, ये 60 into 3.5, राइट। ये डेसिमल हटा, ये 10 आ गया, ये 6 हो गया, और 5 7 जा, 5 4 जा, दिस इज 2 3 जा, 2 जा, 21 आ गया, 10.5 आवर। तो 10.5 घंटे लगते हैं। तो 9 से 9 AM से अगर कोई चलेगा, और 10.5 यानी 10 hours and 30 minutes। तो 10 आवर का मतलब 10 hour 30 minutes के बाद क्या हो जाएगा, इट इज 7:30 PM। दिस इज योर आंसर। x+6√2 इसका स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x-6√2 इज इक्वल टू 2√2 देन x। आई थिंक ये तो बड़ा इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है। x+6√2 1/2 6
रूट टू 1/2 इज 2 रूट 2। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ लें। ये पूरा a है तो इधर आ गया x+6√2 प्लस बी का स्क्वायर x माइनस, राइट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए हो गया x+6√2 1/2 इंटू x माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर आपने किया था, हियर इट इज 2 to the 4 8। अब ये और ये कैंसिल, दिस इज 2x एंड हियर इट इज माइनस ए प्लस, अच्छा ये दोनों में 1/2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंड देन this a plus b, a minus b, this is going to x square minus 6√2 का स्क्वायर is equal to 8. So this 2x minus x square minus 72. It is getting ना 2x, and कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, -2, ये 2x था, x, ये 2 बाहर है, इसको 2 यहाँ रखते हैं, -2 है ना, -2, मिस्टेक ना हो, ध्यान रखो छोटा छोटा। चलिए तो 2 बन जा, तो ये कॉमन होकर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये आ गया आपका x माइनस x² माइनस 72 टू द पावर 1/2 ऐसे को करते हैं। तो इसको 4 माइनस एक्स इस साइड, x² इस x-4 इज इक्वल टू x² -72 टू द पावर 1/2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो जब स्क्वायर आप बोथ साइड करेंगे तो x-4 का स्क्वायर और इस तरफ स्क्वायर किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x² प्लस 16 माइनस 8x, एंड हियर इट इज x² माइनस 72, x² cancel, and this is 16 6 2 8 88 is equal to 8x, x is equal to 11. So I think it is a very simple, ब्लेसिंग ये भी थी, जिसने करा तो हो ही जाएगा, बेसिक क्वेश्चन था ये अलजेब्रा का। नंबर 13, P, Q, R, and S are four towns. One can travel between P and Q along three direct paths, between Q and S along four direct paths, and between P and R along four direct paths. There is no direct path between P and S, while there are few direct paths between Q and R and between R and S. One can travel from P to S either via Q or via R or via Q followed by R respectively in exactly 62 possible ways. One can also travel from Q to R either directly or via P or via S in exactly 27 possible ways. Then the number of direct path between Q and R is to be found out. Okay, it's a good question. लेकिन इसके अगर आप छोटा सा फिगर ड्रॉ कर ले, है ना, तो बहुत हेल्पफुल ये होता है। देखिए, वन कैन ट्रेवल बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, थ्री पास, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, देर आर थ्री पास, ठीक है, ये आएगा काम। एंड क्यू और एस के बीच में भी देर आर फोर डायरेक्ट पाथ, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है।
एंड बिटवीन पी एंड आर फोर डायरेक्ट पाथ। आर को यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 पाथ ये है, ठीक है। देर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में कोई भी रास्ता नहीं है, ब्लॉक, ठीक। देर इज नो पाथ डायरेक्ट। वाइल देर आर फ्यू डायरेक्ट पाथ बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर के बीच में कुछ पाथ्स हैं, कितने हैं नहीं मालूम। सो सपोज देर आर एक्स पाथ्स, there are x paths which is not given. Okay, and there are few direct path between q and r and between r and s। r और s के बीच में भी कुछ पाथ्स हैं, r और s के बीच में भी कुछ पाथ्स, कितने हैं ये नहीं मालूम। सो सपोज देयर आर y पाथ। ओके, वन कैन ट्रेवल फ्रॉम p टू s। p टू s हम लोग कैसे जा सकते हैं? वन कैन ट्रेवल फ्रॉम p टू s आइदर वाया q। अच्छा, पी क्यू एस, इसका मतलब एक हो गया रास्ता पी क्यू एस, और वाया आर, मतलब पी आर एस, ये कह रहे हैं हम। और वाया क्यू फॉलोड बाई आर, वाया क्यू फॉलोड बाई आर, मीन्स क्यू जाए, फिर आर जाए, फिर इस पी, देन क्यू, देन आर, देन एस। तो वन कैन ट्रेवल फ्रॉम पी टू एस आइदर वाया क्यू और वाया आर, और वाया क्यू फॉलोड बाई आर, ठीक है। एंड इन एग्जैक्टली 62 पॉसिबल वेज। तो इसके जो वेज हैं ये दे रखे हैं 62 वेज, ठीक। देन वन कैन ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू आर डायरेक्टली, क्यू टू आर। वन कैन ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू आर डायरेक्टली। तो एक क्यू से आर तक जा सकते हैं, और वाया पी, तो क्यू पी आर हो गया है एक रूट, ये भी हो सकता है। और वाया पी और वाया एस, तो क्यू से आर जाना है। देखिए, वन कैन ऑल्सो ट्रेवल क्यू टू आर डायरेक्टली, और वाया पी क्यू पी आर और वाया एस, तो क्यू एस आर हो गया, क्यू एस आर। And in exactly 27 possible ways, it is 27 ways it is given, like here 62 ways. Then the number of direct path between q and r, x, means हमको x की वैल्यू निकालनी है, ये है क्वेश्चन, करेक्ट। सो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन समझ में आ जाए फिर बड़ा स्मूथ चलेगा, जिन्होंने पीएनसी की क्लास ली है। तो पी क्यू एस, पी टू क्यू, पी टू क्यू कितने रास्ते हैं? तीन। सो इट इज 3 C1, क्यू टू एस 4 आउट ऑफ 4, 1 4 C1, और यानी कि प्लस पी आर एस, पी आर 4 आउट ऑफ 4, 1, आर एस, आर टू एस वाई, सो इट इज YC1, प्लस पी टू क्यू आउट ऑफ 3, 3 C1, then Q2R, Q2R there are X, out of X 1, then R2S, C1. This is equal to 62 ways. So this 3 C 3 4, this is 3 4 is 12, 4 C1 4,
y(c1), y(4y), then 3(c1), 3(x)(c1), x, y(c1). It is 3xy is equal to 62. This is 4y plus 3xy is equal to 50. This is your equation number 1. And इसी तरीके से on the same way we can find here q to r. Q to r is given x. So x path means xc1, or means plus qpr, q to p, q to p 3, 3c1, p to r, p to r 4 into 4c1, और क्या qsr, qsr, q to s4, 4, s to r, s to r, y into yc1. This is equal to 27. So this time here it is xc1 is x, 3 and 4, 12, and this is 4y is equal to 27. So this is finally x plus 4y is equal to 15. This is your equation number 2. And now x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका आंसर है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लीजिए, आ जाएगा। कैसे इक्वेट कर लें? आसानी से आप कर सकते हो। इससे y कॉमन ले लो, y को कॉमन लोगे तो आ जाएगा 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 50। और यहां से क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो यहां पे रख दीजिए 4y अपॉन 15 माइनस एक्स। y और y कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब कुछ काम खत्म। दिस 4 प्लस 3x 15 माइनस x इज इक्वल टू 4 इंटू 50, 200। और सॉल्व कर दीजिए, 15 4 जा 60, 15 प्लस 3 जा 45x, and this is minus 4x, and this is minus 3x square, ये 200 है। So this is 45 minus 4, 41x, so 60 minus 200, and plus 41x minus 3x square is equal to 0. So it is minus 140, माइनस से सब में पूरे में मल्टीप्लाई करना, 3x स्क्वायर, और ये माइनस था, ये हो जाएगा आपका 140, और ये हो गया आपका माइनस 51x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए, 3x स्क्वायर प्लस 140, इसको आप सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं जगह की कमी होने के कारण इस जगह लिखता हूँ। क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। 3x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज प्लस प्लस प्लस, ओके, 3x स्क्वायर 21x
minus 20x 140. So 3x x minus 7 minus 20 x minus 7. So 3x minus 20 means or x minus 7. तो 3x की वैल्यू होल नंबर आने की कंप्लीट रास्ते आधे टूटे फूटे तो नहीं है. तो आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये हो जाएगा. तो आंसर है x minus 7 is equal to 0, x is equal to 7. This is your answer. A very good question. X and y are real numbers such that 4x square plus 4y square minus 4xy minus 6y plus 3 is equal to 0. Then the value of 4x plus 5y. Okay, the question is 4x square plus 4y square minus 4xy minus 6y plus 3 is equal to 0. This is 4x square. You can write it 2x whole square. This is 2y square. It is a 4xy. 4xy we can write 2 into 2x into y. Do one thing. If I take this 2x square minus 4xy, we can write minus 2 into 2x into y. So a square minus 2ab means you need y square. इसको minus y square कर दें. And rest is here 4y square minus 6y plus 3 is equal to 0. Then it is 2x minus y square, and this 4y square and minus y square is a plus 3y square minus 6y plus 3 is equal to 0. Here we can take common 3. 2x minus y square 3 y square minus 2y plus 1. Okay. So this is actually 3 into y minus 1 square, and here it is 2x minus y square. Now see, this number is a perfect square plus this is a perfect square plus. तो ये नंबर भी प्लस में होगा और ये भी प्लस में होगा. तो जीरो कैसे आ सकता है? जीरो तभी हो सकता है एक प्लस एक माइनस और कुछ ऐसा नंबर. इसका मतलब एक ही है कि 2x माइनस वाई ये भी जीरो है और ये भी जीरो है. देन LHS is equal to RHS. So it means in this scenario 2x minus y is 0 and this 3 into y minus 1 0 means y minus 1 is also 0. ये दोनों इक्वेशन अगर सॉल्व की जाए 2x minus y is equal to 0 and y minus 1 is equal to 0 means y minus 1 लिख देते हैं इसको. नो, इसको सॉल्व कर देते हैं ऐसे रखने से काम नहीं बनेगा. दिस इज 0 and this is y minus 1 0. दोनों को ऐड कर दीजिए. ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा. 2x minus 1 is equal to 0. X is equal to 1 by 2. When x is equal to 1 by 2,
Then 2 into 1 by 2 minus y is equal to 0. It means y is equal to 1. So now you have a value of y, you have a value of x. Easy to find 4x plus 5y. So this is 4x plus 5y. ये find कर देता है. So 4 into x is 1 by 2. 5 into y is 1. This is 2. 5 plus 2, 7. This is answer. It is your answer. So this is question number 14. If A, B, and C are positive real numbers such that A is greater than 10, greater than equal to B, greater than equal to C, and this log of A plus B to base 8 over log of C to base 2 plus log of A minus B to base 27 over log of C to base 3 equal to 2 by 3, then the greatest possible integer value of A. Okay, this is to be find out. So here log of A plus B base 8 or log of C base. ओके, आप इसको लिख सकते हो 2 to the power 1 by 3. Means this can be written as log 2, फार्मूला आपको पता होगा, log of C base 2, राइट. ये फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है. log of x base a to the power p is equal to 1 upon p into log of x base a. ये फार्मूला है. So 2 to the power 3 means 1 by 3 log of a plus b plus c. And here it is log of 27 है. इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, log ये a माइनस b log c base 3. तो ये 3 to the power 3 means 1 upon 3 log of a minus b base 3, and below log of c base 3. So it means actually it is log 1 upon 3 log of a plus b base c. फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ये दोनों सेम थे. इससे log of a plus b base c हो गया. यहाँ पर ये 3 सेम है. दिस इज इक्वल टू 1 upon 3 log of a minus b base c, and this is equal to 2 by 3 now it is 1 upon 3 कॉमन लेंगे तो 1 upon 3 3 कैंसिल हो गया. एंड हियर फार्मूला अप्लाई हो गया. फिर log of a plus b into a minus b base c is equal to 2. So finally it is a square minus b square is equal to c2. Sorry, m into n log. This is a square. This will be a square minus b square is equal to c to the power. So now it is a square is equal to b square plus c square. Now it is given a greater than 10,
10 greater than B equal to C. तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है एंड 10 ग्रेटर देन इक्वल टू बी है एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है. ओके. ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीगर वैल्यू ऑफ ए चाहिए. Here A, B, C, actually A, B, C are positive real numbers. A, B, C are positive real numbers means पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो ये सारे के सारे नंबर यहां से लेके जो भी होंगे ए बी सी इसी में से कुछ होगा. हम्म. आप समझते हो ना इस तरीके से जीरो नहीं होगा. अच्छा. ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है. अगर आप इससे 10 लेते हो इसको हम लोग 10 समझ लें एंड 10 इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू बी. इसका मतलब 10 की वैल्यू बी जो होगा इसी तरफ होगा यहां से यहां तक बी होगा इंक्लूडिंग 10 और बी ग्रेटर देन सी है तो ये सब मामला इसी तरफ का होगा. हम्म. अरे सिंपल सी बात खत्म करते हैं. बी मैक्सिमम क्या हो सकता है 10 हो सकता है और 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू सी. तो सी भी अगर ज्यादा से ज्यादा देखे तो 10 हो सकता है. इस कंडीशन में बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 200 और सी स्क्वायर भी 100 तो 200. ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 200 और आपको चाहिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स. तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो देखिए 14 स्क्वायर इज 196 15 इज 225. तो ये मैक्सिमम अगर बात करी जाए ए की तो 14 स्क्वायर 196 होता है. इसके बाद अगर हम लोगों ने 15 लिया तो 225 हो जाएगा और 225 ग्रेटर देन 200 हो जाएगा. तो ए की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए क्या होना चाहिए 40. दिस इज योर आंसर. इज इट ओके. एक्चुअली ये जो रिलेशन है बी की 10 इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू 10 हो सकता है. हम्म. बी 10 हो सकता है सी भी 10 हो सकता है. तो अगर बी की वैल्यू 10 रखते हैं सी की 10 रखते हैं तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 200 हो जाएगा. और ए स्क्वायर है तो हर हालत में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कुछ इस तरीके से हो कि इज इक्वल टू ए स्क्वायर और मैक्सिमम ए की वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर आपको 14 का स्क्वायर 196 होता है. 15 लेंगे तो 225 हो जाएगा. तो ए इज 14 इज योर आंसर. तो कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं थी बस यही सब देखना था आपको. तो आंसर इज 14. A vessel contained a certain amount of solution of acid and water. When 2 liters of water was added to it, new solution had 50% acid concentration. When 15 liters of acid was further added to this new solution, the final solution had 80% acid concentration. The ratio of water and acid in the original solution is found out. So initially in this vessel, here is a mixture of acid and water. Suppose it is X liter. इसमें मिक्सचर है एसिड
प्लस वाटर था. When 2 liters of water was added to it, now the new mixture is x plus 2 liter. X plus 2 liter. The new solution had 50% acid concentrations. अब इसमें एसिड का कंसंट्रेशन 50% हो गया. When 15 liter of acid was further added, अब यहां पर आप प्योर एसिड ऐड कर रहे हो 15 liters. The final solution had 80% concentrations. तो जो फाइनल आपका सोल्यूशन है, अब ये कितना हो गया, x प्लस 17 लीटर, और इसमें एसिड आपका हो गया है 80%. तो आपको ये फाइंड करना है इनिशियली वाटर और एसिड का रेशियो इस मिक्सचर में. वाटर और एसिड का रेशियो क्या था. So see, this question you can do like this. X plus इसमें x plus 2 लीटर, और ये आप ऐड कर रहे हो 15 लीटर, और दोनों को ऐड करने के बाद x प्लस 17 लीटर में एसिड 80% हो जा रहा है. तो इसमें एसिड x प्लस 2 लीटर में वाटर और एसिड का जो मिक्सचर है, एसिड 50% है. 15 लीटर में पूरा का पूरा एसिड है, तो ये 100% हो गया. और इस फाइनल मिक्सचर में एसिड 80% है. एलिगेशन का कंसेप्ट मीन्स 180 का डिफरेंस 20, and here it is 30. So this x plus 2 is to 15 must be 2 is to 3, right? X plus 2, sorry, x plus 2 by 15 is equal to 20 by 30, 2 by 3. So 3x plus 6, 250, 2 into 15, 30, 24, x is 24 by 3 means 8 liter. सो इनिशियल जो इस वेसल में टोटल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 8 लीटर थी. अब 8 लीटर में जब आपने 2 लीटर वाटर ऐड किया था, 2 लीटर वाटर ऐड किया था, तो अब ये 10 लीटर हो गया था. इस 8 लीटर में अगर आपने 2 लीटर ऐड कर दिया वाटर, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 10 लीटर. और इस 10 लीटर मिक्सचर में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 50% था. तो इस 10 लीटर में 5 लीटर एसिड होगा और 5 लीटर वाटर होगा. लेकिन आपसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द वाटर एंड एसिड इन ओरिजिनल सोल्यूशन. ओरिजिनल सोल्यूशन आपने अभी निकाला है 8 लीटर. इस 8 लीटर में वाटर कितना होगा और एसिड कितना होगा, इसी का रेशियो आपको चाहिए. तो सिंपली इस 8 लीटर मिक्सचर में आपने 2 लीटर ये वाटर ऐड किया था ना, 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, टोटल 10 हो गया, और 10 लीटर में 5 लीटर वाटर था. तो 2 लीटर ऐड करने में टोटल 10 में 5 लीटर था. इसका मतलब पहले वाटर कितना था, 5 - 2 3 लीटर. ठीक है. और आउट ऑफ 8 अगर 3 लीटर वाटर था,
5 लीटर एसिड होगा। तो आपका क्वेश्चन था वाटर इज टू एसिड का रेशियो, तो 8 लीटर जो इनिशियल मिक्सचर था उसमें वाटर और एसिड का रेशियो हो गया 3:5। दिस इज योर आंसर। 17 is the coordinates of three vertices of a triangle 1, 2, 7, 2, 1, 10. Then radius of the in circle of the triangle. इन सर्कल रेडियस का ये सेकंड क्वेश्चन आया पूरे इस स्लॉट में। चलिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एंड एक्स। 1, 2, 7, 2, 1, 10 सभी प्लस प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 2। सो सपोज इट इज 1, 2। इस तरह से मैक्सिमम ये कहाँ तक जा रहा है, 7 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 7 तक लिख लिया मैंने। और 2, 2 इधर 10 तक जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक लिख लेते हैं 10। नाउ सी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल 1, 2। इसको हम लोग ले सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया 1, 2। 7, 2, 7, 2। तो ये आपका पॉइंट्स आ गया, कोऑर्डिनेट हो गए 7 और 2। 1, 10, 1 और इस जगह पर आ गया 1, 10। तो ये बड़ा प्यारा सा आपका एक फिगर ड्रॉ हो गया, राइट एंगल दिख रहा है। इसी को इसको इसे ऐसे करना चाहिए, मैंने तो ऐसे ही किया और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ये, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये एक ट्रायंगल बन गया जो कि आपका 1, 2, 7, 2 और 1, 10, ये तीन कोऑर्डिनेट से होके जा रहा है। इनसाइड एक सर्कल है, यानी कि इन सर्कल उसका रेडियस निकालना है। तो जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राइट। इसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो फिर रेडियस का फार्मूला आपको पता है, इन सर्कल रेडियस का फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन स्मॉल एस मींस सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन अब हो गया है। ट्रायंगल एरिया क्या हो गया, 1/2 बेस 1, 7 - 1 6, हाइट 10 - 1 10 - 2 8, and here सेमी पैरीमीटर a + b + c/2। तो 7 - 1 ये 6 हो गया, 10 - 2 ये 8 हो गया, 6 8 है, सो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, यानी ये 10 हो गया। तो और आसान हो गया, 8 सेमी पैरामीटर 8 +6 + 10/2। तो कितने इजी इजी क्वेश्चन थे इस बार के, है ना। ये सब बाहर मिलते हैं, अंदर जब एग्जाम दे रहे हो तो ये दिखते ही नहीं कभी कोई लोगों को। 8 6 14 10 24, 6 4 जा 4 2, रेडियस इज 2। आंसर आ गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18।
All the values of x satisfying the inequality 1 upon x plus 5 less than or equal to 1 upon 2x minus 3. So here it is 1 upon x plus 5 minus 1 upon 2x minus 3 less than equal to 0. It is x plus 5, 2x minus 3. This is 2x minus 3 minus x minus 5 less than equal to 0. So this 2x minus x is x minus 3 minus 5 minus 8 over x plus 5, 2x minus 3 less than equal to 0. So simple question of inequality. You can take it x plus 5, 2x minus 3, x minus 8 less than equal to 0. So here it is x minus 8 means x is equal to 8. This is x is equal to 3 by 2. And here x is equal to minus 5. It is less than equal to 0. So this will be not this is so it means between this and this is the solution of this inequality. 5 is here, right? So it is x is less than equal to minus 5 and x is greater than equal to 3 by 2 less than equal to 8. Okay, but actually we are working here for this. So we elect the denominator should never be equal to 0. So x is less than equal to minus 5. If I take x is equal to minus 5, then x minus 5 and plus 5 0. So denominator 0. It is not acceptable because in this scenario, this fraction will cannot be defined. And similarly, if I put x is equal to 3 by 2, then again this is a 0. 0 into 0 means denominator is again 0. So simply inequalities is going to be x is greater than equal to 3 by 2 and less than equal to 8 is okay, or here x is less than minus 5. So this is answer. X is greater than equal to 3 by 2. This is less than equal to 8, okay, or x less than 5, okay. Answer is what? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. The sides AD and BC, when extended, intersect at point E. If AB is 2, CD is 1, perimeter of ABCD is 6, then the perimeter in centimeter of triangle AAB. Okay. So figure draw करते हैं. This is AB, and let us take this CD. Mhm. A, B, C, and D. AB is parallel to CD. The side AD and BC, when extended, they intersect at point E. Mean if I extend this line this way, okay,
and extend this line BC. This they intersect at point E. And perimeter of ABCD, A, B, C, D is 6. While AB is equal to 2 and CD is equal to 1. Right. Then the perimeter of triangle AEB is to be find out. AEB इसका आपको find करना है perimeter. Okay. So let us take it as let AD is Y and BC को इसी तरीके से कुछ ले लेते हैं get. So ABCD का parameter means AB plus BC plus CD plus AD is equal to 6. AB is 2, BC is Z, CD is 1, AD is Y, 6. So Z plus Y is equal to 6, 2 plus 1, 3. Okay. Now, then the parameter and this and that. Okay, okay, okay. Look here. इस लाइन को एक्सटेंड किया है आपने, है ना? तो ये लाइन इसके पैरेलल है. वेरी सिंपल. ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल ई. ट्रायंगल ए बी ई. ट्रायंगल डी सी ई. ये इसके पैरेलल लाइन है, तो डी सी इसके सिमिलर होगा. सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी सी ई के. Is it okay? Triangle A, E, B similar to triangle will be similar to triangle D, C, E because this is the parallel, right? करने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो. अब इस ट्रायंगल ए बी की साइड ए बी और ट्रायंगल डी सी ई जो सिमिलर है, इसकी साइड का रेशियो 1:2 है. मीन्स डी सी की डबल ये है. तो बस ट्रायंगल एडीई का ये जो साइड होगी और ट्रायंगल ए ई बी की ये जो साइड होगी, अगर ये आपकी ये साइड इसकी डबल होगी. डबल होने का मतलब ये y है, इसको भी y करना पड़ेगा, तो y+2y. ओके, ये y है तो ये y होगा. ठीक इसी तरीके से ये z है तो ये भी z होगा, क्योंकि ये पूरा 2z होना चाहिए. इसका डबल. काम खत्म हो गया, है ना? ट्रायंगल ए ई बी का पैरामीटर आपको चाहिए था. ए बी ई का पैरामीटर हो गया ए बी प्लस बीई प्लस ए ई. ए बी इज टू बीई. बीई क्या हो गया? जेड प्लस जेड 2z. ए क्या हो गया? वाई प्लस वाई 2y. 2 कॉमन ले लीजिए. जेड प्लस वाई. और जेड प्लस वाई आपने 3 निकाला था, तो 2+2 × 3 628. दिस इज योर आंसर. Function f maps the set of natural numbers to whole numbers such that function of xy is equal to function of x into function of y plus function of x plus function of y for all x and y, all xy, and fp is equal to 1 for every prime number p. Then f160000 is to be find out. Okay, this 1,60,000. This is to be find out. And it is given that
x into y is f x into f y प्लस ये आपको फाइंड करना है फॉर ऑल एक्स एंड वाई। और ये प्राइम नंबर के लिए वन दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज तो एफ टू इज वन, एफ थ्री इज वन, एफ फाइव इज वन। समझ में आ रही बात? इस तरीके से ये कोई भी प्राइम नंबर रखेंगे तो उसकी वैल्यू वन आनी चाहिए। ओके, दिस इज वन। इट इज गिवन एफ सिक्सटी दिस, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 16 इंटू 10⁴। तो जरूरत आपको पड़ेगी 16 एफ 10⁴ प्लस means you are in need of this। इसको क्लीन कर देते हैं। ये आपको चाहिए। ठीक। F16 के लिए 4 की जरूरत होगी, है ना? कैसे? आप उसको ऐसे लिख सकते हो। और फिर दिस इज F4 इंटू F4 प्लस F4 मीन्स F4 अगर चाहिए तो F4 के लिए तो 2 मेरे को पता था। तो हम क्या कर सकते थे? F2 इंटू 2 मीन्स F2 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 is 1 into 1 plus 1 plus 1 means F4 is equal to 3। F4 अगर 3 होगा तो बस F16 is 3 into 3 plus 3 plus 3 means 9 6 15। Now you have F16 is equal to 15। ये आपको क्लियर हो चुका था। And now 10⁴, 10⁴ means 10 की अगर वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना? कैसे 10 मिल सकता है? 10 भी क्लियर है। 10 इज व्हाट? F2 इंटू 5, दोनों ही प्राइम नंबर है। F2 F5 F2, अगर आप ध्यान दो तो ये भी 3 होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 1 इंटू 1 +1 +1। ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ सबको एक्सप्लेन करने के लिए। ये आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। 10 आ गया। अब आपको चाहिए एफ 10⁴। 10⁴ का मतलब 100 इंटू 100, तो यू नीड 100, राइट? आपकी जरूरत है 10⁴ मीन्स आप 10⁻⁴ होता है इसका फार्मूला। अब लिख सकते हो मीन्स आपको 100 की जरूरत होगी तो 100 यहां से आप फाइंड कर सकते हो। F100 मीन्स F10 प्लस F10। So 3 into 3, 9 plus 3 plus 3, 9 6 15। So F100 is 15, right? So here F10⁴ is F100 into 100,
चाहे तो डायरेक्ट कई बार लिखा जा सकता है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिखिए आप। अ, अब तो आराम से एग्जाम खत्म हो गया है, राइट? तो इजी जी क्वेश्चन लग रहे हैं ना, करे जा सकते थे। और क्या लेंगे आप? मेरे ख्याल इस बार तो लास्ट ईयर और इस ईयर को देखें तो लॉटरी लग गई है। लेकिन फिर भी एग्जाम खत्म होने के बाद वो प्रेशर खत्म हो जाता है, और फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो 225 एंड 15 प्लस 15 30, दिस इज 255, दिस इज योर f 10 टू द पावर 4, दिस इज इट। 200 सकते हैं। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 255 and this is 50. So now take this. आपको चाहिए था ये, ठीक है? दिस f is equal to f16 कितना था? 15 into 10 to the power 4. What is it? 10 to the power 4 is 255 plus f16 plus 255, add it. इसको मल्टी 15 5 जो 75, 75 and 7, 15 5 जो 75 and 7, 82, 15 2 जो 30, 30 plus 8 38, this is 270, add it, आंसर इसका में आंसर हो जाएगा, आप कर दीजिए 3 2 4000 4079, आंसर इज 4095. This is your answer, 4095. Now see question number 21. If m and n are natural numbers, such that n is greater than, okay, m to the power n is equal to 2 to the power 25 into 3 to the power 40, then m minus n equal to, okay, m to the power n is given 2 to the power 25 into 3 to the power 40. So n एक नंबर होना चाहिए. We can take it 2 into 25 and 3 to the power 25 अगर कर दे इस तरीके से, प्लस 15, तो ये हो जाएगा आप क्या, 2 इंटू 3 टू द पावर 20, 2 इंटू 3 टू द पावर 25 into 3 to the power 15. So this is 6 to the power 25 and it is 3 to the power 15. I think it is clear. क्या कर सकते हैं आप? दोनों में पावर एन, इसके लिए ऐसा कर दो, ये होता है 5 into 5, ये होता है 5 into 3, ओके। तो 6 5 into 5 है, और 15 3 to the power 5 है, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए 6 to the power, दोनों में 5 और 5 कॉमन, तो 6 to the power 5 into 3 to the power 3, तो दिस इज इक्वल टू 5, करेक्ट। इसको हम लोग एम ले सकते हैं, और ये एन हो गया, एन इज ग्रेटर देन 1 भी है, राइट?
तो बस काम हो सकता है 6 to the power 5। 6 to the power 5 क्या होगा? अब मेरे को सिक्स सिक्स यानी 36 इंटू 36 इंटू 6, ये मेरे को लर्न है। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और अब अगर स्क्वायरिंग अगर निकालने आती हो तो अच्छी बात है। इंटू 6, वैसे कैलकुलेटर भी है आपके पास। हम्म तो दिस 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 3 7 5 कैरी ओवर, 5 6 2 12 5 17 और 6 1 7, ये आ जाएगा 6 की पावर 5। और 3 की पावर 3 27 है, तो 7 7 सॉरी 7 7 7 6, इसमें हम लोग 3 की पावर 3 में 27 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना? तो ये m आ जाएगा आपका। 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 49 + 4 53, 5 कैरी, यहाँ पर मिस्टेक ना हो। 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 49 + 4 53, 5 कैरी, 7 7 जा 59, 59 + 5 64, 6 कैरी, and 7 7 ja again 49 + 6 54, then 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14 + 1 15, 2 7 ja 14 1 15, 2 7 ja 14 1 15, it is 2, it is 5, it is 9, it is 9, it is 0, ये आ गया 20 209952 to the power 5। आपको फाइंड करना था m - n, तो हमारा m कितना हो गया? 20। m - n का मतलब हो गया 209952 - 5। The answer should be 209947, correct? This is our answer. कहाँ पर है? ये है 209947। So this is your question number 21. Now see question number 22. A company has 40 employees whose names are listed in a certain order. In year 2022, the average bonus of the first 30 employees was rupees 40,000. Of the last 30 employees was rupees 60,000. And of the first 10 and the last 10 employees together was rupees 50,000. Next year, the average bonus of the first 10 employees increased by 100%. Of the last 10 employees increased by 200%. And of the remaining employees was unchanged. Then the average bonus in rupees of all 40 employees together in year 20. Okay, here total employees 40. Okay, in 40 employees, let us take the first 10 and last 10 and the 20 employees between first 10 and the last 10. Okay, let's see how this work in this question. Okay. It is given the average bonus of the first 30 employees was 40,000. So sum of the bonus of the all first 30 employees, bonus sum is going to 30 into 40,000. Means it is 12 into 10 to the power 5. Similarly, sum of last 30s bonus of all 30 employees is 60,000 into 30. 60,000 into 30. So this is going to 18 into 10 to the power 5. Okay, the first 30, 10 plus 20. Last 30, 20 plus 10. Means these 20 employees between first 30 and the last 30 is common. Correct? So here, sum of the first 30 employees bonus is 12 into 10 to the power 5, and sum of the last 30's bonus is given 18 into 10 to the power 5. In both cases, you have common these 20 employees between the first 10 and the last 10. Okay.
Then it is given the first 10 and the last 10 employees together average. Okay. So let us take, uh, this is all in year 2022. In 2022, average of the first 10 is X and average of the last 10 is Y. Okay. So the sum of the first 10 employees average is going to be sum of the first 10 employees average will be 10x and sum of इसको ऐसे लिख देते हैं sum of the first 10 employees average sum of first 10 employees average is 10x and the sum of last 10 employee average 10y. Okay, it is 50,000. So this is n1 x1 plus n2 x2 upon n1 plus n2 for finding the average, combined average. So this formula you can use here like 10x plus 10y upon 10 plus 10. It is 50,000. So 10 you will take common. 10 plus 10, 20. It is 2. So the equation is x plus y is equal to 2 into 50,000 means 100,000. You can say x plus y is equal to 10 to the power 5. This is equation A, it is B, and it is C. Okay. One thing more. Mm, look here, these 20 implies common between first 10 and the last 10. So sum of the bonus of between 20 implies you can find 12 into 10 to the power 5 minus 10x, or you can find it sum of 20 between 20 implies bonuses this 18 into 10 to the power 5 minus sum of the last 10 is 10 by, correct? So in both way you can find the sum of the 20 between 20 implies bonus, right? So both are same thing. If you put here 12 into 10 to the power 5 minus 10x is equal to 18 into 10 to the power 5 minus 10y. 18 minus 12 6 और 10 10 कॉमन हो जाएगा तो this will be y minus x is equal to 6 into 10 to the power 4, right? Like it is 60,000. Okay, this is D. So now I think it is very clear. C and D. On equating C and D, we can have value of x and y. 10 to the power 5 means 100,000. So if I add C and D, then y plus x minus x cancel हो जाएगा. So this 2x is going to 1,60,000. So x is, no, y x cancel होगा, sorry, ये यहाँ पर y आ जाएगा. So 2y is 1,60,000. So y is going to 80,000. If y is 80,000, then on putting here, you will get x is equal to 20,000. So we have average of first 10 in 2022. We have average of last 10 in 2022. This is all about 2022. So in 2023, in 2023, this average is increased 100%. This is 2x means 2 into 20,000. 2 into 20,000. It is
40,000 40,000. And here it is in 2023, 200% increase. So it is a 3y. So 3 into y is 80,000. So this is going to 2,40,000. Okay. This is average of last 10 employees. And this is the average of first 10 employees. Okay. It is given the remaining employees was unchanged. So average of the remaining employees, remaining means these 20 employees between first and the last, इनका average is not going to change. तो इसका मतलब sum भी इनका सेम रहेगा, तो इनका वही सेम रहेगा, सम रहेगा जो इसमें था। तो अब देखिए सम क्या था इसमें से, किसी ये सम ऑफ द बिटवीन 20 एम्प्लॉइज 12 इंटू 10 to the power 5 माइनस 10x है, या फिर 18 10 to the power 5 - 10 में किसी में भी x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, या यहाँ पर y की वैल्यू है तो ये मिल जाएगा मेरे को। सो सम ऑफ, इसमें सपोज हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं, तो हियर दिस sum of the bonus of between 20 employees जो था वो सेम रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 12 इंटू 10 to the power 5 माइनस 10, एक्स इज वॉट, एक्स इज 20,000, राइट। एक्स इज 20,000 था, तो 20 10 जा 200 मीन 2 lakhs हो गया, 2 इंटू 10 to the power 5 हो गया। तो 12 माइनस 2 इज 10 इंटू 10 to the power 5। दिस इज अ सम ऑफ the bonus of between 20 employees, right? This is your E. Okay, so now it is E to find average of first, average of the 40 employees in year 2023. What is it? Sum of the first 10. So first 10 का sum कितना हो जाएगा, नया 10, एवरेज कितना है इसका, ये 40,000, 40,000 है 2023 में। 40,000 को मैं 40 के लिख लेता हूँ, ठीक। और बिटवीन ये 10 इंटू 20 to the power, ये तो अनचेंज था, ये ऐसे रहेगा। और लास्ट में 10 इंटू, ये कितना हो गया, इसको लिख लेते हैं 240 के, इस 240 का मतलब यू ऑल अंडरस्टैंड, डिवाइड बाई 40, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए 40 के है, 10 की पावर 3 4 5, so we can have common कहाँ पे करना है इसको, 10 to the power यहाँ पे कर लेते हैं, 10 to the power 5, 10 to the power 3 4 5, तो ये 4 हुआ, प्लस 10 की पावर 5 की प्लस 10 होगा, 10 की पावर ये 1000 है, 3 4 5, तो इट इज 20 डिवाइडेड बाई 40। सो ये 4 हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 24 10 34 प्लस 38, सो 2 2 जा 4 और 2 19 38, एंड 19 ये 10 to the power 4, 10 to the power 4 है, तो ये आपका हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 इंटू 19, दिस इज कमिंग 95,000। सो दिस इज योर आंसर, 95,000। करिए, पर्पस सिर्फ इतना है कि आप सारे क्वेश्चंस को देखें आने वाले एग्जाम्स में। अगर ये क्वेश्चन कहीं रिपीट होते हैं, या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या इस टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कुछ जरूर हेल्प मिलेगी। दिस इज अ holistic approach of attempting and solving all these 20 questions.
of CAT 2024 paper. It is a slot 2. Thank you.